Namaskar, Pranam and Jai Hind. Welcome to Dad Think Labs. Today we have Sambhavi Srishti who secured rank 16 in NIFT entrance examination and rank 3 in NID entrance examination. So let's talk to her and know about her journey. First of all, many congratulations, Sambhavi. So when you saw your result, what was your first feeling? Thank you, sir. When I saw my result, I was extremely happy and I was so excited. I was not expecting that I'll get this rank. Then I told my family mates, friends, and even in the institute, I called and told everybody. Before that, only even sir called and sir was excited to know my result. And when I came to know that I have secured some good rank, I just I just went to my father and just told him. Then he told me like, okay, just it's good and just move further. Don't just sit here that you have got a good rank. Just go further with the flow. Okay. So when exactly you decided that you want to be in NIFT or NID? Basically, I decided, but I took interest when I was in class 1 or 2. I saw some fashion shows on TV and then I was extremely excited. No, I have to do this only. I don't know from where the thought came in my mind, but I was extremely excited. Then further when I grew up, I told about this to my parents. First they said like, no, don't do this, but then I asked my few family mates and friends even who are doing this in this field, who are working. So they told me like, it's a good field, you can explore in this. So then after I asked my father and I convinced him like, let me do this only. Okay. As you have qualified for both the examination NIFT and NID, तो आपने क्या decide किया है कि NIFT में जाएंगे या NID में जाएंगे? Sir, basically I was worried like which field I should choose, but I constantly thought and I decided for NIFT. I know some of them are saying it's not good choice for me. I would have opted for NIFT NID because I was getting Ahmedabad, but still I chose NIFT Delhi because for me, I always thought I should work with the fabrics. It was my interest to work with the fabrics, not even with the other things. So I don't think in NID the same what I am expecting. I think NID won't be giving that to me. It is best college I know, but I was not sure that I would be doing the things what I want NID would provide me. But yes, I was sure about NIFT because I have that in my mind since I guess about 12 years. I was a kid, but still I was thinking I should do my further studies in NIFT only. So that is also the thing I have always thought like I would go for NIFT. So it is in my mind, I know somewhere. So I just opted for NIFT only. I was not even sure about NID, like what should I do or not. ओके तो NID का जहाँ तक हमें पता है कि आपका NID का फॉर्म फिल करने का ही मन नहीं था, तो फिर ये अचानक से फॉर्म फिल करने का डिसीजन कैसे हुआ? Yes sir, actually I was not even agreeing to fill an NID form, but Suman sir when I came DAD, sir asked me like go for both the fields. So he told me like fill the form of an NID also, it's good. So I was not convincing. He convinced me, he told me, he explained me everything, and then he said like go for this field. Once you can fill, at least don't even, you just, if you want you go, and if you don't want, don't go, but at least try and give the exam. Maybe you qualify or something. I am really thankful, at least he asked me and he convinced me, and I have filled the exam and I gave the exam, and both exams went pretty good, and the exam was also nice and I secured ranks. I was a bit happy also, and I was a bit like confused now where to go and where to choose. ओके बात आती है रैंक की, तो रैंक स्टूडेंट का ज़रूर होता है, बट उस रैंक के पीछे काफ़ी लोगों की एफर्ट्स लगे होते हैं. Yes sir. तो टॉकिंग अबाउट योर रैंक, तो किन किन लोगों का इसमें आप कहना चाहेंगे एफर्ट रहा? So for me, basically, I would give the credit to DAD first of all, my parents, especially my father, because my father, every time he was working with me, like he was coming after schooling, he used to come and drop me here. Then here in coaching, Suraj sir there, you were here, Suman sir were there, everyone was there, and everyone was so supportive whenever I was like a bit low, like I will not be able to do this. Then you were there to guide, and always you made us confident like you have to do, you will be able to achieve your success and you will get some good ranks, so go for it. And you guys motivated, my parents motivated, my friends were there. So yes, I did the thing. On the behalf of Dad, I would like to thank her parents, especially her father, जो हमेशा इनको समय पर DAD पहुंचाते थे, स्कूल ले जाते थे. उनके ऑफिस तो हुई होती थी, लेकिन फिर भी उसको मैनेज करते हुए उन्हें हमेशा डैड या स्कूल हमेशा टाइम पर छोड़ जाते थे. चलिए थोड़े पीछे चलते हैं और बात करते हैं DAD की. तो व्हेन यू फर्स्ट केम टू नो अबाउट DAD?
सर फर्स्ट मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, एक्चुअली आई वाज सर्चिंग अबाउट निफ्ट एंड एनआईडी, तो मुझे वैसे कुछ समझ आ नहीं रहा था, बट सडनली अ वीडियो पॉप अप ऑफ डीएडी एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, जब सारा वीडियो प्ले कर रहे थे ये भी चेक कर लेना चाहिए क्या है. देन आई प्लेड एंड सूरज सर वीडियो वाज देयर. He literally told everything. He explained everything so well that I decided now, like, I need to meet this sir once. I was so extremely excited. Then I was searching on Google. I found the place, and then I came with my parents here. And then finally, I got to know about DAD, and then I just came here. तो डीएडी आकर मतलब आपके ने जैसे बताया कि आपका इंटरेस्ट अच्छा था, पहले से डिज़ाइन में काफ़ी था, तो डीएडी आकर आप में क्या बदलाव आया, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ ऐसा? सर इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, स्कूल के टाइम में होता है कभी थोड़ा बहुत ही ध्यान रहता है, डिज़ाइनिंग पे वैसा कुछ फोकस नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ड्राइंग किए, ये किए वो किए. बट जब डीएडी आए तो सूरज सर वॉज देयर, यू वर देयर. सूरज सर ऑलवेज गाइडेड मी. ही लिटरली पॉलिश्ड माई डिज़ाइनिंग थिंकिंग. जो भी ड्राइंग कर रही थी मैं, वो उन्होंने इतना पॉलिश कर दिया, इतना रिफाइन कर दिया कि अभी ऐसे बनाने में बिल्कुल डर भी नहीं लगता है कि हाँ कुछ गलत हो जाएगा. शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा गलती होती भी थी. तो डिज़ाइनिंग से अब डर नहीं लगता है, लेकिन क्या सूरज सर से डर लगता है? सर डर तो नहीं लगता, बट हाँ एक गाइडेंस है तो थोड़ा रहता है कि कभी गलती हुआ तो सर हमेशा रहते थे गाइड करने के लिए. वैसा जेन्युइनली डरना भी चाहिए टीचर्स लोग से, क्योंकि जहाँ गलत होंगे वो गाइड करेंगे, उसमें डांट पड़ता ही है, ऐसा कुछ है नहीं. सो वो नॉर्मल था, ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं. तो डिज़ाइनिंग में की बात हो गई, तो और दूसरा सेक्शन होता है गैट पार्ट. तो गैट के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी था, कैसे आपने प्रिपरेशन करी? सो बेसिकली मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि स्कूलिंग और दोनों साथ करना था, तो आई डिवाइडेड लाइक सब्जेक्ट वाइज. तो एवरीडे मैथ्स कर रहे थे, थोड़ा कैट का पार्ट भी कर रहे थे, इंग्लिश वगैरह वीक में 1-2 दिन कर लिया करते थे, क्योंकि थोड़ा पहले से था इंग्लिश पे, तो इसलिए थोड़ा उसको साइड में रख रहे थे. फिर इसी तरीके से सारा जो भी था करा मैंने. और बेसिकली जीके तो लास्ट 3 मंथ्स में ही जो भी करना था आपने बताया था उसी के अकॉर्डिंग ही सीरियसली करा. और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, बट मुझे दोनों करना था मैनेज, तो एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लग जाता था. कभी लेट नाइट पढ़ना पड़ गया, कभी सुबह उठ के जल्दी से सब कुछ ख़त्म करना, क्योंकि स्कूल का असाइनमेंट्स भी रहा, इधर का भी रहा, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ा. तो बिल्कुल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि जो स्कूल में है 12th के साथ या फिर 11th में पढ़ रहे हैं, वो साथ साथ निफ्ट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते या एनआईडी क्रैक नहीं कर सकते. तो बिल्कुल आपने देखा शांभवी सृष्टि जो खुद 12th में पढ़ रही थी, उन्होंने 12th के साथ साथ निफ्ट और एनआईडी दोनों एग्जामिनेशन को क्रैक किया है. तो आप भी चाहते हैं तो आप भी बिल्कुल सिर्फ सही स्ट्रैटेजी, सही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आप भी निफ्ट एनआईडी 12th के साथ साथ भी कर सकते हैं. Now talking about the examination, when you saw the NID papers in examination, what was your feelings? What was your reaction? So I was like, paper was moderate. I was not like, मुझे लगा था ऐसा पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट आने वाले, बट जब मैंने पेपर दिया it was a bit difficult, but it was easy also, because most of the questions I have already solved. It was like all the questions are crossing, so I was like okay चलो करा है तो maybe it will be good. But then when I went to give the second round of exam, I was so nervous because I was not knowing even कि इसमें क्या करना होता है, थोड़ा ज़्यादा ही nervous हो रही थी. But when I was giving exam, I literally completed in 1.5 hour paper. It was of 2.5 hour. So then also everyone was making, everyone was doing, and I was sitting and I was like गलती भी कर रहा है, सही भी कर रहा है, कुछ श्योर नहीं हो रहे थे. बट देन आई थॉट चलो जितना करना था कर लिया, उससे ज़्यादा आता भी नहीं है, जितना आता था सारा एफर्ट्स लगा चुके हैं जितना भी था. सो आई डिड दैट. तो अब शांभवी काफ़ी बच्चों की इंस्पिरेशन बन चुकी है, रैंक 3, रैंक 16. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जानना चाहते हैं कि जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या करें, कैसे तैयारी की शुरुआत करें? सर द वेरी फर्स्ट थिंग दे नीड टू डिसाइड लाइक व्हाट दे हैव टू डू. द वेरी फर्स्ट थिंग, उसके बाद उन लोगों को होना चाहिए कि काम में काफ़ी ज़्यादा फोकस चाहिए होगा. ये नहीं कि आज कर रहे हैं कल छोड़ दिए एक दिन, क्योंकि सूरज सर ने एक बात कही थी स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे क्लास था, क्लासेस ऐसा करना कि ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं कल छोड़ दिया, परसों कर रहे हैं फिर छोड़ दिया. कंसिस्टेंटली सारा काम होना चाहिए, एक भी दिन ऐसे गैप मत करना. सो आई डिड द सेम, आई फॉलोड हिज गाइडेंस. I always worked every day. I was doing my assignments every day. I was giving extra time towards the subjects and I was reading. So I would tell them also to be focused and to work consistently, not like हाँ आज कर रहे हैं कल छोड़ दें. Don't do that. Every day just work and it will give you success. चलिए, एक बहुत बड़ा डर जो बच्चों को फोबिया होता है मैथ्स का. तो निफ्ट में जो मैथ्स होते हैं कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, कैसा होता है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बच्चों
अब आपसे जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे की क्वेरीज आते हैं कि सर मैथ्स भी है, मैथ्स का ये फोबिया है काफ़ी बच्चों में है, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ये वाकई में इतना डिफिकल्ट होता है मैथ्स? सर ऐसा मुझे भी लगता था कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट नहीं, आता तो 10th बेस तक ही है। सो शुरू में मुझे बहुत डाउट हुआ, बट व्हेन यू टॉल्ड मी बेसिकली आई वाज लाइक सर नहीं होता है, देन यू ऑलवेज टोल्ड मी करो एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड सॉल्विंग आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट होता भी है जितना हम लोग उसको बना देते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी करते हैं। बट जब कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस होने लगता है तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट लगता भी नहीं है। अगर हर दिन कर रहे हैं तो वो बहुत नॉर्मल हो जाता है लास्ट टाइम आते आते तक, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर्स भी होने लगते हैं तब तक, तो काफ़ी नॉर्मल था फिर तो मेरे लिए लास्ट में। Okay, Sambhavi, we all know that you have worked really very hard to achieve this rank, and on behalf of the whole DAT team, I wish you all the very best for your future, and we wish कि आप कॉलेज में भी जाकर इतना ही मेहनत करें and बहुत अच्छे डिजाइनर बनकर निकले। Thank you, sir, and I wish I would really make you all proud and even my families. I will really work hard and I will just get some good place. Okay, thank you so much, Sambhavi, for the time, and I wish you all the very best. Thank you, sir. तो ये थी शांभवी सृष्टि जिन्होंने निफ्ट एनआईडी दोनों एक साथ क्रैक किया है और 11th-12th के साथ क्रैक किया है। अगर आप भी इनकी तरह अच्छी रैंक पाना चाहते हैं, निफ्ट एनआईडी यूसीड क्रैक करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें डैट थिंक लैब्स। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे फ्री कंटेंट है जो आपको निफ्ट एनआईडी यूसीड क्रैक करने में मदद करता है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपर के साथ अगले सेशन में। जय हिंद। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर and utilize all the resources of Design Awareness Drive.